Hello students, welcome back to our online classes with Best English School and with me your social science teacher students. So students, I have already completed your chapter 1 Rise of British Rule in India. So today in this video we would like to start a new topic of your similar chapter or subject social science students. So students, in this video we would like to start our chapter 2 First World War and Russian Revolution. So in this video we would like to start chapter 2 First World War. We will discuss about the First World War, and then there is another topic, that is Russian Revolution. Okay students, so you all have heard about the First World War, right? Definitely, because First World War was the very famous world war that known everyone, each of in the planet, in the earth, on the earth, in the world, each and every person know about the First World War. So let's begin students, our subject social science, chapter 2 First World War and Russian Revolution students. Okay, so in the screen you can see it over here, part by part we will read this one first and then we will discuss about all these words or sentences, and I will explain you that one. Okay students, so let's get started. The yearning of the Western European countries for expansion of the empire and acquire new territories, colonies, resulted in these countries going to Asia and Africa. Thus, they established their colonies and expanded their rule. Consequently, there arose a competition between European nations to establish colonies. This greed for colonization among the Western European nations caused the economic, social and cultural ruin of the Asian African countries. The result of this on world politics was such that the First World War, Bolshevik Revolution, etc. took place. So dear students, let's study about these details. So students, in this whole paragraph from over here to over here, in this paragraphs we have discussed about the Western European countries. Western sides European countries, they have expanded their empire. मतलब वो अपना empire expand करने में लगे हुए थे, नए नए न्यू territories expand कर रहे थे. कहाँ से? From Asia to Africa, means they were going to Asia also, they were going to Africa also, means they were staying in Europe, right? वो लोग तो यूरोप में रहते रहे थे, बट अपना टेरिटोरीज और एक्सपेंशन करना चाह रहे थे अपने एम्पायर को, तो वो एशिया भी जा रहे थे और अफ्रीका भी जा रहे थे. Thus, they established their colonies, मतलब उन्होंने अपनी कॉलोनीज बहुत स्टैब्लिश कर ली थी और बहुत ज़्यादा जगहों पे उन्होंने रूल स्टार्ट कर दिया था स्टूडेंट्स. तो इसलिए यूरोपियन के अदर कॉलोनीज़ के साथ कंपटीशन बढ़ गया था, क्योंकि यूरोप हर जगह में फैल रहा था ऑब्वियसली. सो स्टूडेंट्स, दैट्स वाई दिस ग्रीड मतलब लालच, जो यूरोपियंस की जो लालच था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. मतलब वो अपने आप को बेस्ट बनाना चाहते थे इन इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल ऑल the activities. They wanted to become the first one and the popular one, and that's the reason the result world politics was held on the First World War, Bolshevik Revolution. और ये सब चीज़ों की वजह से ही, जो यूरोपियंस की जो ग्रीड थी उसके वजह से ही, there was a one of the reason about that कि First World War have been taken place students. So the next topic is all about the Western European colonialism in Asia, Africa. So we will discuss Western colonialism in Asia and Africa students. So let's begin. The Western European countries wanted to expand their empire in Asia, Africa. Their greed for colonization did not spare even their neighboring countries. Spain had taken control over Netherlands, Belgium and
बर्ग. सो स्टूडेंट्स, द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो एशिया और अफ्रीका में अपनी एम्पायर बढ़ा रहे थे, वो अपना एम्पायर बढ़ा रहे थे, तो क्या हुआ कि उनके जितने भी कॉलोनाइजेशन थे वो नेबरिंग कंट्रीज़ के कोलैबोरेशन में अड़चन आ रहा था. तो तब तक में क्या हुआ स्टूडेंट्स कि ये जो स्पेन है, स्पेन ने बहुत सारे कंट्रीज़ में कंट्रोल ले लिया था. कौन कौन सी वो कंट्रीज़ थी? नेदरलैंड, बेल्जियम एंड लुक्सेमबर्ग. ये 3 कंट्रीज़ में स्पेन रूल कर रहे थे. मीन्स दे हैविंग टुक कंट्रोल फ्रॉम द ओवर नेदरलैंड, बेल्जियम एंड लुक्सेमबर्ग. Later on, some of their provinces were captured by France. और इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे provinces थे जिसमें फ्रांस ने कैप्चर कर लिया था बहुत सारे जगहों में. स्टूडेंट्स, when the Portuguese king died without an heir, Portugal came under the rule of the Spanish king because of his blood relation. So for 6 decades, the monopoly of establishing colonies in non-European countries was with Spain. So students, what happened? Ki there was a rule, you can say, that if the Portuguese king died, मतलब जो पोर्तुगल किंग है, पोर्तुगल के जो लोग होते हैं उनको पोर्तुगीज बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो द पोर्तुगल्स के जो किंग है वो बाई चांस मर जाते हैं और विदाउट एन एयर, एयर HEIR, एयर मतलब विदाउट अ चाइल्ड, मतलब उनका कोई बच्चा नहीं हुआ और वो किंग मर गए, तो ऑटोमेटिकली जो उनकी किंगडम है वो पूरा का पूरा किसके पास चला जाएगा? स्पेन किंग के पास चला जाएगा. और क्यों ऐसा क्यों है आप पूछोगे? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि स्पेन और पोर्तुगीज के बीच में एक ब्लड रिलेशनशिप है. ये ब्लड रिलेशनशिप है किंग और किंग्स के थ्रू. इसलिए बाई चांस पोर्तुगीज के कोई हेयर विदाउट एन एयर पोर्तुगीज किंग मर जाता है तो वो ऑटोमेटिकली स्पेनिश किंग के पास उसकी पूरी प्रॉपर्टी, पूरा का पूरा किंगडम कौन ले जाएगा? स्पेनिश किंग ले जाएगा स्टूडेंट. एंड ऑटोमेटिकली एज वेल एज स्टूडेंट्स, बाई चांस स्पेनिश किंग के कोई एयर विदाउट एन एयर द किंग वुड डाई, सो देयर किंगडम विल ऑल्सो गोज to automatically to the Portuguese king. Students, okay, means they were having that type of similarities. एंड जैसे कि मैंने आपको बोला कि पोर्तुगल्स किंग जब मर गए को विदाउट एन एयर, तो उसमें क्या हुआ कि एटलीस्ट 6 डिकेड्स मतलब 6 सेंचुरीज तक में यूरोपियंस मोनोपोली ऐसी ही चलती रही और नॉन यूरोपियन कंट्रीज वाज विथ स्पेन. सो जितने भी नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ थे, जो यूरोप के कंट्रीज़ नहीं थे, वो सारे के सारे स्पेन के साथ से. स्टूडेंट्स, दे वर टुगेदर विद द स्पेन. Similarly, Italy and German states became the victim of the greed of France and Austria. So as well as students, जो इटली और जो जर्मन स्टेट्स थे उनके, वो सारे विक्टम बन गए थे फ्रांस और ऑस्ट्रिया के. मीन्स ऑस्ट्रिया, सी दिस इज़ नॉट अ कंट्री ऑस्ट्रेलिया, दिस इज़ ऑस्ट्रिया, AUSTRIA. ऑस्ट्रिया इज़ ऑल्सो अ कंट्री. ओके, सो यू डोंट थिंक कि ये ऑस्ट्रेलिया है जहाँ के कैंगारू बहुत फेमस है. नो, दिस इज़ नॉट दैट कंट्री, दिस इज़ सम अदर कंट्री हुज नेम इज़ ऑस्ट्रिया. सो ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस वेयर जस्ट टॉर्चरिंग द स्टेट्स विच हैव बीन कम फ्रॉम इटली एंड जर्मन. तो ये दोनों जो स्टेट्स थे वो ये दोनों स्टेट्स में बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगे थे. स्टूडेंट्स, when the European powers were tightening their grip over the Asian and African nations, many of the European nations which had become free, following the footsteps of England, made many of the Afro-Asian nations their colonies. So students, what happened कि ऐसे बहुत सारे यूरोपियंस पावर थे जिन्होंने एशिया और अफ्रीका के जो नेशंस थे उसमें बहुत अच्छा ग्रिप बना के रखा था, मतलब इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखा था. सो एज वेल एज स्टूडेंट्स, देयर वर मेनी यूरोपियंस नेशंस विच हैड बिकम फ्री फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ इंग्लैंड. मतलब ऐसे बहुत सारे नेशंस थे जो फ्री थे बट इंग्लैंड के फुटस्टेप्स में जा रहे थे. मीन्स जो इंग्लैंड बोल रहा था वैसा वैसा वो लोग सब कर रहे थे. देयर वाज अ लॉट ऑफ यूरोपियन नेशंस वेयर देयर, ऐसे टाइप के.
एंड दे हैव मेड एफ्रो एंशियन नेशंस देयर कॉलोनीज. तो उन्होंने एफ्रो एशियंस करके एक कॉलोनीज मेडअप की थी स्टूडेंट्स. नाउ वी विल सी फर्स्ट बाय फर्स्ट the Asia, and then we will discuss Africa. Colonialism in Asia, then we will see colonialism in Africa, students. So let's see this one. Colonialism in Asia. After strengthening its grip over India, England expanded its empire to Sri Lanka, Myanmar, Burma, Singapore and Malaysia. England entered China also, but due to the opium trade between England and China, there were wars. 1839 to 1842, students. So, which came to be known as Opium Wars in history. China lost this war and thereby lost 5 of its port to England, where England could carry on their trade and thus expanded their empire. Taking advantage of China's weakness, Japan, Russia, Germany, France, Belgium and America also acquired trade and political rights. So students, what happened in the colonialism in Asia कि after strengthening its grip over India, जो देखो इंग्लैंड ने ऑलरेडी इंडिया को जीत लिया था, राइट. 200 years around they were ruling in India, right? So then afterwards England और अपना एम्पायर एक्सपेंड करना चाह रहा था, तो उसने श्रीलंका को कैप्चर किया, देन म्यांमार को कैप्चर किया, फिर सिंगापुर एंड मलेशिया, ये सारे को इंग्लैंड ने कैप्चर कर लिया था. इवन स्टूडेंट्स, इंग्लैंड चाइना भी गए थे, इंटर चाइना ऑल्सो. एंड ड्यू टू द ओपियम ट्रेड, जो इंग्लैंड और चाइना के बीच में था, उन दोनों के बीच में एक वॉर हुआ था, एक बहुत बड़ा बैटल हुआ था. कब तक चला? 1839 टू 1842 तक चला स्टूडेंट. एंड दैट्स द रीज़न इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपियम वॉर्स बोला जाता है हिस्ट्री में. मतलब जो भी हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं उसमें ये ओपियम वॉर के हिसाब से जाना जाता है. इसी की वजह से उस टाइम चाइना हार गया था वो वॉर, एंड इसके वजह से इंग्लैंड ने 5 पोर्ट्स चाइना के ऑक्यूपाई कर लिए थे, मतलब उन्होंने ले लिए थे. वेयर इंग्लैंड कुड कैरी देयर ट्रेड, उसने अपना पोर्ट तो उन चाइना से ले लिया, तो उससे क्या हुआ, उसका एक्सपेंड हुआ एम्पायर. किसका एक्सपेंड हुआ? इंग्लैंड का एक्सपेंड हुआ एम्पायर. एंड एज वेल एज स्टूडेंट्स, दे हैव कुड हैविंग एट दैट अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड, मतलब उनके पास वो अपॉर्चुनिटी थी कि वो और ज़्यादा पोर्ट्स के थ्रू, मीन्स बाय वाटर वेज दे कुड ट्रेड, राइट. एंड एज वेल एज टेकिंग एडवांटेज ऑफ चाइनाज वीकनेस, जैसे चाइना का वीकनेस, अब इंग्लैंड से चाइना हार गया था तो सबको पता चल गया कि चाइना बहुत कमज़ोर है अब. तो ये जितने भी है, जापान, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम एंड अमेरिका, they also gone for trading over there and having their own political rights, students. Enormous oil resources in the desert region of West Asia attracted the Europeans to establish colonies there. England, Germany, Russia and America established oil companies in Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia and Bahrain, and made efforts to take care of their own interest. So students, what happened is that कि there was in the desert area, ये जो desert area है जहाँ पे पानी एकदम नहीं होता, जहाँ जो एरिया एकदम सोक्ड होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेजर्ट एरिया. सो इन द डेजर्ट एरिया ऑफ वेस्ट एशिया देयर इज़ एन इनॉर्मस ऑयल रिसोर्सेज एंड दैट्स वाई अट्रैक्टेड द यूरोपियंस. वहाँ पे वेस्ट एशिया में डेजर्ट के वहाँ पे इनॉर्मस सॉयल रिसोर्सेज थे, तो इसके वजह से यूरोपियंस यहाँ पे बहुत अट्रैक्ट हुए थे और वो और अपनी कॉलोनीज़ वहाँ पे भेज रहे थे. तो इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया और अमेरिका ने ऑयल कंपनीज ईरान में स्टार्ट कर दी थी, इस्टेब्लिश कर दी थी. उन्होंने ये कहाँ पे की थी, ईरान में की, इराक, कुवैत एंड सऊदी अरेबिया एंड बहरीन.
ये जितने भी इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया और अमेरिका, ये 4 जो कंट्रीज़ है, उन्होंने ये यहाँ पे उन्होंने अपने ऑयल कंपार्टमेंट्स कंपनी स्टार्ट कर दिए थे स्टूडेंट्स। एंड वो अपने इंटरेस्ट के लिए, मीन्स दे वर सो मेकिंग एफर्ट्स टू गेन प्रॉफिट, वाइल इफ दे विल got the company over here, if they will resell their oil resources, obviously they will gain profit, right? They will gain it out. So that was the matter of fact that they have gone to this effort of soil resources, students. Okay, now we will see colonialism in Africa. एशिया का हमारा पता चल गया, अब हम लोग अफ्रीका की बात करेंगे स्टूडेंट्स. ओके, The Dutch established its colony for the first time at the end of 15th century in South Africa. After that, England and France established their colonies in Cape and Algeria in North Africa, respectively. The vast provinces of Africa seemed quite suitable for acquiring raw material and selling ready products. Post-industrial revolution, because of which European countries competed to establish colonies. So students, the Dutch, I have told you the Dutches, उन्होंने भी establishment की थी कॉलोनी 15th सेंचुरी में. कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में उन्होंने स्टार्ट की थी ये चीज़. उसके बाद इंग्लैंड भी वहाँ आए और फ्रांस भी आए. कहाँ पे आए? कैप में और अल्जेरिया जो नॉर्थ अफ्रीका में है. तो ये दोनों स्टेट्स भी उनके पीछे पीछे आए और यहाँ ये 2 जगहों पे उन्होंने अपनी कॉलोनी स्टार्ट की स्टूडेंट्स. उसके बाद अफ्रीका वाज क्वाइट सूटेबल. अफ्रीका में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, रॉ मटेरियल्स थे और सेलिंग रेडी प्रोडक्ट्स, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में बहुत हेल्प करता है स्टूडेंट्स. इसकी वजह से जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ थे वो सारे के सारे अफ्रीका में आके इस्टेब्लिशमेंट अपनी कॉलोनीज़ के कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी अच्छे सूटेबल प्राइस में रॉ मटेरियल्स मिल रहे थे. सेलिंग रेडी प्रोडक्ट्स, जो रेडीमेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ईजिली हो रहे थे. सो उनके लिए तो ये प्रॉफिट था. दैट्स वाई द यूरोपियन कंट्रीज हैव स्टैब्लिश्ड कॉलोनीज स्टूडेंट्स. ओके, नाउ लुक इट आउट. किंग लिपोंड ऑफ बेल्जियम seized the vast provinces of Congo and established his rule. England established its colonies in Egypt, some provinces of East Africa and some of South Africa. France established its colonies in Tunisia, Morocco and West Africa provinces. Germany established its empire in some provinces of East and West Africa. So students, what happened? जो किंग थे लिपोर्ड, जो बेल्जियम के किंग थे, वो उन्होंने एक कॉन्गो किया था और अपना रूल स्टैब्लिश किया था, अपना सत्ता स्टैब्लिश किया था. जहाँ पे इंग्लैंड ने भी अपनी कॉलोनी स्टार्ट की थी. कहाँ पे? इजिप्ट में. मतलब दे वर स्टार्टिंग देयर ओन कंपनीज ओवर these places of in Africa. And then afterwards there was East Africa and some of in the South Africa. मतलब इंग्लैंड ने पहले इजिप्ट में किया, फिर ईस्ट अफ्रीका में गए और उसके बाद वो लोग साउथ अफ्रीका में भी गए थे. एंड ये जगहों पे कौन गया था? इंग्लैंड गया था स्टूडेंट्स. नाउ वी विल सी फ्रांस. फ्रांस established its colonies is तुनिशिया एंड मोरक्को, और वेस्ट अफ्रीका के साइड में भी फ्रांस ने अपना किया था. देन जर्मनी हैव established इन एम्पायर इन ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका. मतलब स्टूडेंट्स, हमें ये पता चलता है कि इंग्लैंड ने कहाँ पे स्टार्ट किया था? इजिप्ट, ईस्ट अफ्रीका और साउथ अफ्रीका में. फ्रांस ने कहाँ पे स्टार्ट किया था? तुनिशिया, मोरक्को एंड वेस्ट अफ्रीका में. और जर्मनी ने कहाँ पे स्टार्ट किया था? ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका में जर्मनी ने स्टार्ट किया था. नाउ इटली कैप्चर्ड द अफ्रीकन प्रोविंसेस. इटली जो थी वहाँ पे इटली ने रेड सी को कैप्चर कर लिया था, जो अफ्रीकन प्रोविंसेस में था. मतलब रेड सी की इर्गल बिगल में ही थे. देन स्पेन एंड पोर्तुगल ऑल्सो सीज्ड सम प्रोविंसेस ऑफ अफ्रीका. तो उसके बाद क्या हुआ? स्पेन भी वहाँ आए और पोर्तुगल भी वहाँ पे आए हैं, और कुछ पार्ट अफ्रीका के उन्होंने भी चूज़ कर लिए थे स्टूडेंट्स.
A conference for the European nations was held in Berlin 1884 to 85. In the midst of this competition to establish colonies, different African territories were divided among the European nations at the end of the conference. Thus, the colonial dominance of different European nations were established over the entire Africa. So students, what happened? There was a conference ऑफ यूरोपियन नेशंस के कॉन्फ्रेंस था कहाँ पे? बर्लिन में, जहाँ पे कंपटीशन रखा गया था एस्टेब्लिश यूरोपियंस, मतलब देयर वाज हैपनिंग इन अफ्रीका. देयर वाज अ फैक्ट दैट कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ अफ्रीका में आके अपनी कंपनी को स्टैब्लिश कर रहे थे, राइट. तो डिफरेंट अफ्रीकन टेरिटरीज वॉज डिवाइडेड इन यूरोपियन नेशंस एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस. जो एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस बहुत सारे डिफरेंट यूरोपियन नेशंस को अफ्रीकन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया था. एंड देन कॉलोनियल डोमिनेंस ऑफ डिफरेंट यूरोपियन नेशंस स्टैब्लिश्ड. और इसी की वजह से अफ्रीका में अलग अलग यूरोपियन स्टेट्स कंट्रीज़ के नेशन स्टैब्लिश हुए all over the Africa, entire Africa, students. Okay. While on one hand the greedy European nations were trying to colonize various Asian African territories, on the other hand Germany and Italy had completed the process of its respective political unification. Thus, the unified Germany plugged into the competition of industrialization, commercialization, and colonization. Thus, these quickly changing global phenomena had exploited some of these countries politically, economically, and socially, due to which their development had stopped. This had led to the First World War. So, students, एक साइड में तो अब यूरोपियन सारे के सारे अफ्रीका को कैप्चर करने में लगे थे, राइट, बिकॉज दे वांटेड टू बी पावरफुल इन द वर्ल्ड. सो ऑन द अदर हैंड देयर वाज एन यूरोपियन नेशंस वे आर ट्राइंग टू डू एशियन अफ्रीकन टेरिटरीज. मतलब एक तरफ में बहुत सारे ऐसे यूरोपियन नेशंस थे जो एशिया में भी और एज वेल एज अफ्रीका में भी अपने यूनियन टेरिटरीज होल्ड ऑन कर रहे थे. जैसे कि जर्मनी और इटली, दे वॉज हैविंग देयर ओन पॉलिटिकल यूनिफिकेशंस, मीन दे वर हैविंग देयर ओन लेक्च. सो दस द यूनिफाइड जर्मनी, जो जर्मनी था वो एक कंपटीशन में लग गए थे इंडस्ट्रियलाइजेशन में, कम्युनलाइजेशन में और कॉलोनाइजेशन में. मतलब जर्मनी हर जगह फैलना चाह रहा था. दे वांटेड टू स्टैब्लिश देयर ओन पाथ, स्टूडेंट्स. दस दीज क्विकली चेंजिंग, ये जो चेंज हो रहा था ग्लोबल फिनोमिना में कि सारे के सारे कंट्रीज इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, दे ऑलवेज वांटेड टू बी फर्स्ट एंड ड्यू टू देयर डेवलपमेंट हैड स्टॉप्ड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैव बीन कम. मतलब ये क्या हुआ, हर जगह में जा के सब चीज़ें कर रहे थे स्टूडेंट्स, तो एक दूसरे को रोक रहे थे वो कि तुम मत बढ़ो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं मैं तुम क्यों बढ़ रहे मैं आगे बढ़ूंगा. सो दैट्स द रीज़न द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैव टुक place, students, because each and every country just wanted to spread it out its own company, right, because they wanted to have a wealth. So that's the big reason the first world war have been occupied. मतलब अफ्रीका में भी उनको अपना जो एम्पायर है वो ब्रॉट आउट करना है, एशिया में भी करना है, एज वेल एज यूरोप ऑल्सो. सो बिकॉज ऑफ दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैव बीन टुकन प्लेस, स्टूडेंट्स. ओके. So students, now we will see factors that caused first world war. मतलब क्या क्या ये factors थे जिसके through first world war occupied हुआ. Okay students, so let's see the first world war's factors. The first world war could be considered as one of the most heartbreaking and unforgettable events of the modern world. Many factors were responsible for this. The First World War began on 1st August 1914. Germany had defeated France in the Sedan War, because of which France had to sign the Frankfurt Treaty
1871, according to which France had to pay a war fine as well as give away two of its provinces, Lorraine and Alsace, to Germany. France had not been able to overcome this humiliation. Thus, the Frankfurt Treaty itself was the cause of the First World War. The end of a war showed the seeds of a future war, students. So, students, what happened when the First World War would be considered, मीन्स ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो सबसे बड़ा हार्ट ब्रेकिंग और अनफॉरगेटेबल, मतलब कभी भी वर्ल्ड में ये भूला नहीं जाएगा, ऐसा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था. और इसके मेजर फैक्ट्स ये रिस्पॉन्सिबल था कि सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था, 1 अगस्त 1914 में. स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेंबर दीज डेट्स because these dates would definitely came in your examination. Okay students, so आपको सारे के सारे dates याद रखने हैं. So students, जर्मनी had defeated, जर्मनी ने फ्रांस को डिफीट कर दिया. कौन से वॉर में? सिडन वॉर में. तो फ्रांस ने एक ट्रीटी साइन करने को बोली. वो ट्रीटी का नाम क्या था? फ्रैंकफर्ट ट्रीटी, जो 1871 में हुआ. इसके अकॉर्डिंग ये ट्रीटी में ऐसा था कि जो भी वॉर, ये जो बीच में इन दोनों के बीच में फाइट हुई, वॉर हुआ, बैटल हुआ, वो वॉर का पे, वो पूरा का पूरे वॉर का पे करेंगे. कौन करेगा? फ्रांस करेगा जर्मनी को. एंड एनी ऑफ दैट इट्स प्रोविंसेस, मीन 2 प्रोविंसेस उनको देने पड़ेंगे. तो वो 2 प्रोविंसेस क्या थे? लॉरियन एंड एलेक्से टू जर्मनी. ये 2 प्रोविंसेस उनको जर्मनी को देने थे. सो उनको ऑब्वियसली देना पड़ा क्योंकि ये चीज़ उनके ट्रीटी में लिखा हुआ था. सो द ट्रीटी नेम वाज फ्रैंकफर्ट ट्रीटी, स्टूडेंट्स. सो ये जो चीज़ उन्होंने जर्मनी ने फ्रांस के थ्रू करवाया, तो फ्रांस को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन हुआ. मतलब देयर वाज अ वन टाइप ऑफ ह्यूमिलिएशन, मीन्स दे वर नॉट बेयर इट, मतलब वो ये चीज़ सह नहीं सके. ऑब्वियसली आप हार चुके हो तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा जो जीते हुए कंट्री है उसको. सो दैट्स द रीज़न द फ्रांस फील्स लाइक दे वाज वेरी मच ह्यूमिलिएटेड. एंड दिस वाज द फर्स्ट वर्ल्ड, मीन्स दिस वाज द फर्स्ट वे दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैव बीन ऑक्यूपाइड. मतलब एक्चुअली आप ये बोल सकते हो कि ये जो सिडन वॉर था, जो जर्मनी और फ्रांस के बीच में हुआ था, ये एक रीज़न है स्टूडेंट्स कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ. एक्चुअली ये एक सीड है, जिसके सीड जैसे कैसे होते हैं कि सीड हम लोग रखते हैं, उसके बाद ट्री ग्रो करता है, राइट स्टूडेंट्स. सो दिस वर द वन ऑफ द सीड दैट हैव बीन ऑक्यूपाइड इन द माइंड ऑफ द फ्रांस, स्टूडेंट्स. ओके, सो इसी के थ्रू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ. नाउ वी विल सी द वेज. द फर्स्ट वे इज इकोनॉमिक फैक्टर्स. England had established its vast empire in Asia and Africa in the 19th century. It exploited its colonies economically and became rich. Due to industrialization and swift colonization, Europe required huge quantity of raw material. In the last quarter of the 19th century, Germany had started the competition to procure the markets in Asia and Africa. Germany started supplying cheaper goods in comparison to England and France. The Afro-Asian market that England and France dominated were thus broken up by Germany. Consequently, there was an intense economic competition between Germany and England. So what happened, students, in the economic factor that इंग्लैंड हैव ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड, मतलब इंग्लैंड ने पूरे एशिया और अफ्रीका में 19th सेंचुरी तक में अपनी स्टैब्लिशमेंट कर ली थी नॉर्मली. एंड इंग्लैंड वॉज वेरी मच इकोनॉमिकली रिच एंड बिकेम रिच, मतलब वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे. दे वॉज बिकमिंग वेरी रिच as well as at that time in the industrialization also and in the swift colonies also. मतलब economically, financially, in every matter the England was very much wealthy, students. So then afterwards Europe required huge quantity of raw material. Europe में बहुत ज़्यादा ही raw materials का market था.
They was very much rich in the raw material. So in the last quarter of 19th century, जर्मनी हैड स्टार्टेड द कॉम्पिटिशन. फिर क्या हुआ, जर्मनी उस मार्केट में आया. कौन से मार्केट में, जहाँ पे एशिया और अफ्रीका के, वहाँ पे एक्चुअली पहले इंग्लैंड भी थे वहाँ पे और ऑलरेडी फ्रांस भी थे. मतलब ये दो कंट्रीज़ वहाँ पे ऑलरेडी अपना एम्पायर बैठा चुके थे. एंड उसके बाद कौन आया, जर्मनी आया स्टूडेंट्स. सो जब जर्मनी आया तो उनके जितने भी प्राइस थे, जो भी मार्केट में वो सेल कर रहे थे, वो सारे मार्केट के जो प्राइस थे वो इंग्लैंड और फ्रांस के जो प्राइस थे उससे कम रखते थे. फॉर एग्जाम्पल कि इंग्लैंड एंड फ्रांस प्रोडक्ट वॉज 100 रुपीज़, सो देन एज वेल एज द जर्मनी विल सेल द सेम प्रोडक्ट विथ 80 to 60 रुपीज़. सो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, जो चीप प्राइस में जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है तो द कस्टमर वुड बी डेफिनेटली अट्रैक्टेड टू दैट वन, राइट. जहाँ पे कम दाम में मिलेगा कस्टमर वही प्रोडक्ट लेने के लिए जाएंगे. सो दैट वॉज द इम्पैक्ट दैट इंग्लैंड एंड फ्रांस वॉज वेरी मच डोमिनेटेड. मतलब उनकी जो मार्केट थी पूरी की पूरी एशिया और अफ्रीका में, वहाँ पे जर्मनी वॉज डेफिनेटली ब्रोकन अप. मतलब जर्मनी उस टाइम में रीसेल कर रहा था, छा गया था एक्चुअली, आप बोल सकते हो. सो दैट वॉज वेरी मच बैड न्यूज़ फॉर द इंग्लैंड एंड फ्रांस, राइट. सो दिस वर द कॉम्पिटिशन वेर हेल्ड बिटवीन जर्मनी एंड इंग्लैंड. तब से जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में एक कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गया स्टूडेंट्स. ओके, नाउ वी विल सी militarism. Military force was necessary and important for the competition that the European nations got into. For expansion, England, France, Austria, Russia, etc. had become expanding their military power. While in countries like Japan, Italy and Germany, compulsory military training had started. Production of weapons was increased under the pretext of self-defense. Thus, militarism got an impetus and military competition added to economic competition created a serious atmosphere of war. So students, militarism में ये बताया जा रहा है कि जो military force था वो एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट था मैटर कंपटीशन के, जो यूरोपियन नेशंस में होने वाला था. क्योंकि उस टाइम में दे वर एक्सपेंडिंग देयर होल empire, right? For example, England, France, Austria and Russia, they were expansion, and that's the reason they had begun expanding their military power. उन्होंने अपनी military power भी expand करना चालू कर दिया. While in countries like Japan, Italy and Germany, they also compulsory military training had started. तो वहाँ ये तीन कंट्रीज़ में भी, जापान, इटली और जर्मनी में भी मिलिट्री ट्रेनिंग उन्होंने स्टार्ट कर दिया था. प्रोडक्शन ऑफ विपन्स हथियार प्रोडक्ट करने का, एंड देन प्रीटेक्स मतलब अपने आप को सेल्फ डिफेंस सिखाने का. ऐसी बहुत सारी ट्रेनिंग अपने सोल्जर्स को उन्होंने देना स्टार्ट कर दिया था. एंड दैट देयर वॉज एन, एक्चुअली आप ये बोल सकते हो कि देयर वॉज एन इन्वायरमेंट दैट देयर वुड बी डेफिनेटली अ वॉर. मतलब ऐसा इन्वायरमेंट बन चुका था सारे कंट्रीज़ में कि they were trained as well as by heart to be ready for a war. मतलब वॉर होगा बाई चांस, तो वॉर के लिए रेडी रहने के लिए वो लोग सारे के सारे ट्रेनिंग ले रहे थे बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स. ओके, so I have completed economic factors and militarism. Now we will see the third and the fourth one. Groupism, secret treaties. Groupism and secret treaties played a major role in the First World War. The world was divided into two groups before the First World War. On one side was the group of Germany, Austria, Hungary, Bulgaria and Turkey, while on the other side was the group of England, France, Russia and Japan. A feeling of jealousy, enmity, mistrust, fear and hatred involved between the groups, which was an important factor of the First World War. So students, this was a very much interesting.
there is a topic groupism and the secret treaties. Secret treaties means अलग अलग कंट्रीज़ में बिना किसी को बताए उनके बीच में एक ट्रीटी हो चुकी हो. तो ये जो ग्रुपिज्म और सीक्रेट ट्रीटीज़ है इज़ हैविंग अ मेजर रोल इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. मतलब आप बोल सकते हो कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल दे रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, बिकॉज द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स. 2 ग्रुप में ये वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया था बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके पहले 2 ग्रुप में बांट दिए थे. एक साइड में कौन था? एक साइड में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गेरिया और टर्की थे. और दूसरी साइड में कौन था? इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और जापान. ये सारे कंट्रीज़ के बीच में एक दूसरे के रिलेटेड जेलसी and angriness, hatred, fear, these all were between them, and that makes an important impact that have been become the starting of the first world war. मतलब ये एक impact है कि first world war हुआ students. Okay, now we will see the 4th one, and that is feeling of fears nationalism. So feeling of fears nationalism. So students, the independence of Belgium and Greece and the unification of Germany and Italy were the result of nationalism. But later, the feeling of nationalism took an extreme and narrow form in Europe. Economic jealousies, competitions and colonialism in Europe had increased so much that the national interest of each other began to clash. Leading European nations began teaching extreme and destructive nationalism to its people. Love for own nation and hatred for the other nations was encouraged. The German chief Kaiser William was the other originator of nationalism and colonialism. He was over-ambitious and believed in world leadership. He wanted to get things done according to his will with the help of his grand military power. The feeling of war spread across other nations, as in Germany, and this had resulted in the First World War. So students, what happened is that कि feeling of mers nationalism means जो independence थे, जो जर्मन, बेल्जियम और ग्रीस के बीच में इंडिपेंडेंस था एंड यूनिफॉर्मिकेशन था. मतलब जर्मनी और इटली वाज नेशनलिज्म, उनका एक यूनिफिकेशन था, दे वाज यूनाइटेड. सो जो उनकी नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ के थी यूरोप में. उनके बीच में इकोनॉमिक जेलसी, कंपटीशन और कॉलोनिज्म इन इंडिया इंक्रीज, इन यूरोप इंक्रीज. मतलब उनको इन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा जेलसी और कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. एंड दैट्स द रीज़न दे वर क्लैश विथ ईच अदर. मतलब ये लोग हमेशा एक दूसरे के बीच में आ जाते थे स्टूडेंट्स. जो लीडिंग यूरोपियन नेशंस थे, they began teaching extreme, they was teaching the extreme power of their own nationalism. मतलब एक तरफ से आप बोल सकते हो जर्मनी was just telling about their nationalism and the Italy was talking about their own nationalism students, and they just wanted to take the people in their own sides. सो देर वॉज वेरी मच ओवर एम्बिशियस. मतलब वो बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस थे कि वर्ल्ड लीडरशिप के लिए, मतलब उनको पूरा का पूरा वर्ल्ड जीतना था स्टूडेंट्स. एंड दैट्स द रीज़न दे वर जस्ट गोइंग टू अ ग्रैंड मिलिट्री पावर. एक यही रीज़न था स्टूडेंट्स कि उनके पास ज़्यादा मिलिट्री पावर रहेगी तो वो ज़्यादा कंट्रीज़ में कैप्चर करेंगे, और ज़्यादा कंट्रीज़ में कैप्चर करेंगे तो पूरे वर्ल्ड वो जीत जाएंगे स्टूडेंट्स. तो दे वर फोकसिंग ऑन दैट वन स्टूडेंट्स. द फीलिंग ऑफ वॉर, ये एक फीलिंग थी जो जर्मनी में पूरी जगह में फैल चुकी थी और बहुत अदर नेशंस में भी फैल चुका था कि अब तो डेफिनेटली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा ही होगा. दैट विल ऑक्यूपाई डेफिनेटली. देयर इज़ नो अदर ऑप्शन to do the war. There is only one option, that they have to get the weapons out of their wall and they have to get on that battle students. Okay, now we will see the last two topic, that is role of newspaper.
So they was having a role of newspaper. The newspaper of the European nations aroused so much of hatred among people with their mutual, derogatory, provocative, ex- exaggerated, and false write ups by spitting venom against rival nations, that the rulers of the respective nations could not even make efforts for establishing peace and harmony. So, students, newspaper was having a very important role. See, in the above four parts I have told, all the four parts are important, but this one, the role of newspaper, was very much impactable. Why? Because while newspaper was going to get to the normal people, जो नॉर्मल पीपल है उन सब के हाथ में न्यूज़पेपर ऑब्वियसली आएगा ही आएगा. सो वेन एवर दे विल रीड द न्यूज़पेपर, in the newspaper there was just none other than the hatred between the other community, between the other countries. मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ यही लिखा हुआ है, hatred, ख़राब चीज़ें अदर कंट्रीज़ के बारे में, और ख़राब ख़राब बातें ही लिखी हुई थी. एंड यही एक रीज़न था कि उन दोनों जो भी कंट्रीज़ के बीच में ये वॉर होने वाला था, वॉर होने वाला था, तो उनके बीच में पीस ही नहीं रहा. क्योंकि ये जब भी ये बारे में बात कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर डेडिकेटेड, और दे विल डेडिकेट टू देयर ओन नेशन, राइट. फॉर एग्जांपल जर्मनी के नेशंस के न्यूज़पेपर है तो वो ऑब्वियसली इंग्लैंड के बारे में ख़राब बोलेंगे, और इंग्लैंड के जो न्यूज़पेपर होंगे वो ऑब्वियसली जर्मनी के बारे में ख़राब बोलेंगे. सो एट दिस पॉइंट दे विल हैविंग नो पीस. दे जस्ट वांटेड अ वॉर एंड दे जस्ट वांटेड टू डू और डाई फिलोसफी, मीन्स करो या मरो, ऐसा था. बिकॉज दे ऑल वांटेड टू हैव अ वॉर, and that's the reason role of newspaper was having a very impactable, because there was non effects, मतलब efforts ही नहीं डाले गए थे उन लोगों के बीच में कि शांतिपूर्वक नॉन वायलेंस के थ्रू भी बात हो सके. उनके बीच में यही चल रहा था कि they were having a war, students. Okay, now let's see the last one, and that is philosophy about war. The policy of war is welfare took root in Europe. The German writer Tocqueville published maxims like only the mighty deserve to live and war alone is the national need. Nietzsche, the German writer, expressed war as a scared work. So students, what happened? फिलोसफी अबाउट वॉर. जो फिलोसफी मतलब क्या होता है, जो बहुत बड़े बड़े राइटर्स हैं, जो बड़े बड़े impactable peoples, very ambitious peoples, they were talking about this type of situation. So the German writer whose name was Tocqueville, उसने एक स्टैब्लिशमेंट की मैक्सिम में, उसमें लिखा उसने कि ओनली द माइटी डिज़र्व टू लिव, मतलब जो इस चीज़ के हकदार है, जो लोग रहना चाहते, जो उसके लिए वर्दी है, वो ही डिज़र्व करते हैं जीने का. एंड वॉर अलोन इज़ द ओनली नीड, एंड दे हैव रिटन कि वॉर से ही ये चीज़ हमें पता चलेगा. तो वॉर तो होना ही चाहिए, ये लाइन का मतलब यही है कि वॉर तो होना ही चाहिए. So as well as there was some other German writer whose name was Nietzsche, and उसने क्या लिखा है वॉर के रिलेटेड कि the war is a scared work, एक scared work, एक डरा हुआ, एक बहुत ज़्यादा खतरनाक वर्क है, that is a war. So the Prince of Austria and his wife were assassinated by being shot or by a member of the Serbian terrorist organization Black Hand. Austria blamed Serbia for the involvement in the act and gave an ultimatum to hand over the culprit to Austria within 48 hours. Serbia declared its ignorance in the matter. Without listening to anything from Siberia, Austria declared war on Siberia. The First World War had begun with this. So what happened, students? There was a Prince of Austria and his wife were assassinated and shot by a murder member of the Siberia terrorist organism जिसका नाम था ब्लैक हैंड. सो एक ऑर्गेनिज्म है ब्लैक हैंड, वो एक साइबेरियन टेररिस्ट ने
किंग और क्वीन जो ऑस्ट्रेलिया के प्रिंस और उसकी वाइफ को शूट कर दिया था, मर्डर कर दिया था. सो ऑस्ट्रेलिया ने ब्लेम किया था साइबेरिया को कि आप लोग का इन्वॉल्वमेंट ये चीज़ में है. तो विद इन 48 आवर्स यू हैव टू फाइंड आउट द कल्पिट, द मर्डरर, एंड हैंड ओवर टू द ऑस्ट्रेलिया. But what happened student, the Siberia just ignored this fact and declared it. मतलब उसने इग्नोर कर दिया. They just ignored about this one. And after, without listening it, the Siberia was nothing. They was nothing worried about that one. They just ignored it. Then afterwards, the Australia declared war on Siberia. So that is the moment. Then when Australia declared war on Siberia, the First World War just began. यही एक मोमेंट था जो ऑस्ट्रेलिया और साइबेरिया के बीच में सबसे पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था स्टूडेंट्स. क्यों? क्योंकि साइबेरिया टेररिस्ट ने प्रिंस और उसकी वाइफ ऑस्ट्रिया के जो प्रिंस थे और उनकी वाइफ थी उनके शूट कर दिया था. सो दैट्स द रीज़न द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड बिगन विथ this. So if you were there would be the question that when the First World War had been begun. So you have to write between the Austria and Siberia the First World War have been begun, students. Okay, so students, now we all know that this video was long. It's have been half an hour, above half an hour. So now I will just wrap it out my video, and in this video we have completed 2 pages. So later on in the next video we will do the next 2 pages. Okay students, so if you have any query, so you just ask me out very easily, and if you really want it in a hurry up, so you just comment me there, okay, in the given description box also. So students, till there I will see you in the next video. So if you have liked my video students, and you have understand whatever I was explaining you about the First World War, so you just have to like, share and subscribe students. Okay, so I will be there with the next video. Bye bye and have a nice day students. Take care.